नमस्कार दोस्तों, FII के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं संजीव अरोड़ा अपनी को होस्ट डॉक्टर द्रव्या जैन के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट रितु कपूर जी। तो रितु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं डॉक्टर द्रव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है रितु जी आज के इस प्रोग्राम में आपका। अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी एडवोकेट रितु कपूर जी। शी इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन and she has been working very dedicatedly for women empowerment. She is the founder and director of REAP Foundation, which is working towards spreading awareness to the feminine section on their legal rights and issues through conducting seminars, workshops, and other events to provide legal assistance to women facing harassment and exploitation. यहाँ पे अपना एक पर्सनल मैं एग्जाम्पल भी साइज करूंगी। रितु जी की रीप फाउंडेशन के थ्रू एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रही है wherein she is providing legal awareness about legal rights of women for free, and she has conducted 2 sessions so far. It is happening in the city of Gurgaon. There are 2 more sessions to go, and the kind of audience and the kind of response that I have been seeing in these 2 events, that is phenomenal. ये कुछ legal rights एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम कोर्ट या लॉयर की बात सुनते हैं शायद हम घबरा जाते हैं, पर जिस तरीके से ब्यूटीफुली रितु जी इन चीजों के बारे में बात करती हैं, इतने इंस्पिरेशनल स्पीकर्स और गेस्ट को अपने फंक्शन में बुलाती हैं जिनकी स्टोरी सुन के शायद रोंगटे भी खड़े होते हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो I think you are doing a great, wonderful job for the society, Ritu ji, and we applaud your spirit. And again, with all our heart, we welcome you on our show. तो रीप फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपकी मोटिवेशन क्या रही, थोड़ा वो बताइए। Thank you so much, Sanjeev ji and Dr. Dravya, for inviting me for this session, for this discussion, interactive session, which we are going to have. And I am a practicing advocate at District Court Gurugram. I'm also empaneled as a legal aid counsel with few police stations of Gurugram, as well as there are few government centers. So whenever there is any woman victim comes, so we are called over there to help them, to guide them, to let them know the procedure. And at the same time, through DLSA department, there is one department in the court, that is DLSA. The full form is District Legal Service Authority. And through that department, we were sent, we are sent to a few colleges and schools, government colleges, and to few NGOs too, to spread this awareness to economically weaker section. So sometimes they are going through a lot at their place. घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है या डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो हम वहां पर जाकर, और जैसे बच्चे हैं स्कूल में, उनको पॉक्सो के बारे में बताना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना उन बच्चों को, बॉयज को भी, स्पेशली जो बॉयज भी होते हैं वहां पर, कि ऐसा हो तो क्या होता है। तो ये हम लीगल अवेयरनेस के सेशंस वहां पर तो ले ही रहे थे। बट ड्यूरिंग दिस profession, means while I'm into practice, so I came across with so many ladies, those who are very, very well educated. I have handled cases of doctors, of IFS officers, and actually I have handled these. It's not that I'm just saying for the sake of saying all these things, but yes, there are ladies, those who came from a very good background, very well educated. They are working in IB schools and corporate level MNCs, but somehow, if at all something is happening with them at their matrimonial front, then they are clueless. They are not aware where to go.
Then I thought of creating this Reith Foundation, and moreover, this Reith Foundation's target is to actually spread awareness for this strata of community where the middle class and above middle class families are there, because above middle class और middle class families के लिए कुछ भी ऐसा platform नहीं था wherein they will get this legal awareness sessions or information. So then I thought कि economically weaker sections के लिए तो हम जा ही रहे हैं, through DLS से जा रहे हैं, हमारी ड्यूटीज लग रही हैं और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs काम कर रही हैं, बट मिडिल क्लास एंड अबव मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ नहीं है. देयर इज नो वे वेयर दे विल हैव टू, दे कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन. और इफ एट ऑल दे आर फेसिंग एनीथिंग, या तो उन्हें रोका जाता है फैमिली में, उन्हें ये एक सोशल स्टिग्मा लगता है, उन्हें बहुत एप्रीहेंशंस है एक कोर्ट में जाने की. कोर्ट में जाने की एप्रीहेंशन किसी भी लड़की के लिए है, बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट एन easy journey. Actually, it is very, very difficult for any girl to approach a particular lawyer to whom she has to approach to. उसको पता ही नहीं है मैं किससे पास जाऊं, मेरी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रही है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैं सुबह से शाम काम तो कर रही हूँ, बट मेंटली मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे किस लॉयर के पास जाना है, मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है. दैट गर्ल इज क्लूलेस. सो वो हमने क्या किया, ये जो जर्नी उनकी थी कि कोर्ट से घर से या अपने ऑफिस से कोर्ट तक पहुंचने की, हमने उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सी इजी करने के लिए हमने कोर्ट को ही घर घर और लीगल अवेयरनेस सेशंस ये घर घर पहुंचाने की ये उठाई जिम्मेदारी, और ये सोचा कि ओके रीथ फाउंडेशन इसी पे बेस्ड है, और यही उसका रीजन था रीथ फाउंडेशन को क्रिएट करने का, कि right now we are focusing only to spread awareness, legal awareness for this legal rights of women, so that they know at least कि उनको एक छोटा सा, अगर एक, जैसे आपने तो सेशन अटेंड भी किया मैम द्रव्या, तो देयर आई हैड मेंशन कि अगर हमें एक डोमेस्टिक वायलेंस के में छोटा सा हमें राइट लेने के लिए, वेयर इट सेज राइट टू रेजिडेंस, and if somebody is throwing her out from her matrimonial house, so she can always go and take a stay on that, she can claim rent, particular small things. वो ये preconceived एक notion हमारा एक चलता आ रहा है पिछले काफी सालों से, और लोगों को लगता है कि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां अप्रोच करने से वो डरते हैं. कोर्ट एक बहुत डरावनी जगह बन गई है उनके लिए, लॉयर्स एक बहुत ऐसे बन गए हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोर्ट जाएंगे तो 2 साल केस चलेगा, 3 साल केस चलेगा. ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट. तो रीथ फाउंडेशन का मेन मोटिव अभी यही है कि हम ये लीगल अवेयरनेस जो है जगह जगह हम पहुंचाएं, जहां जहां हम ये स्प्रेड कर सकते हैं, जितने लोगों को हम ये पहुंच सकते हैं, और उनके थ्रू आगे और जितनी स्प्रेड कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं. एंड अंडर दिस वी हैव लॉन्च्ड प्रोजेक्ट शक्ति. And Project Shakti will be under that Project Shakti we are going to take series of 5 legal awareness sessions. So 2 we have already done, 3 are now we'll be doing in next 3-4 months. So that's the motive. It is commendable the kind of social action that you picked up on, and the number of lives that you are touching via these sessions. We never know किसके लिए क्या कितनी जरूरत है, और आप उनके लिए एक रे ऑफ होप बनकर उनकी लाइफ में इन सेशंस के थ्रू जा रहे हैं. एंड वी रियली होप एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि ये प्रोजेक्ट और भी बहुत आगे बढ़े, आप पूरे इंडिया को टच करें. थैंक यू. हर एक महिला हिंदुस्तान की जागरूक हो अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने सोशल राइट्स के लिए, और वाकई में सही मायनों में आप विमेन एम्पावरमेंट करें. We wish you all the very best. और अपनी ऑडियंस को मैं यहाँ एक चीज और बताऊंगी. Advocate Ritu Kapoor ji, she is also associated with FII in the Women Empowerment Cell. Yes. So moving on to the next question, Ritu ji. जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बोला कि कोर्ट या लॉयर के बारे में हम बात करते हैं तो बड़ी इनहिबिशंस आती हैं, सबको सोच के डर लगता है, और शायद उतनी इजी जर्नी है भी नहीं, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या जस्टिस को बहुत टाइम लगेगा, फाइनेंशियली ड्रेनिंग भी हो सकता है, और हमें ये एक्चुअली नहीं पता कि ये रियल पिक्चर है या नहीं. दिस इज मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द टीवी,
हम सिनेमा जो देखते हैं वहां से इंस्पायर्ड हैं ये नोशन, पर एक्चुअली में व्हाट इज द रियल पिक्चर? डज वन रियली नीड टू बी स्कैर्ड? आई डोंट थिंक सो. आप जरा बताएं इस बारे में. Yes, it is a very good question because definitely लोगों के बहुत ज़्यादा apprehensions हैं to approach a lawyer, to approach a court, क्योंकि बहुत financial crunches भी हैं कहीं कहीं front पे. Even if they are from influential families, they are rich, backgrounds are rich, they are leading a very good status and very good life. Still, एक उनकी अपनी जो individually finance independence है वो नहीं है उनके पास. So somewhere they say that, ma'am, I have a good house, I have good car, driver, everything is there, but everything is been maintained by my husband. So I don't have those financial, that income in my hand to run my case. Or if at all I will file a case, he will take away all these facilities from me. And it happens. It's not that. We experience this. The moment we file, that the guy, the husband, he always tries to scare the woman, or he just starts taking away all those facilities, whatever she's been given to. But at the same time, there is one term called interim relief. So in our legal provisions, in all legal provisions, in domestic violence, in maintenance, in divorce, everywhere, wherever that matrimonial case is filed, we can always apply for interim relief. We need to move an application while filing the case of domestic violence or maintenance or divorce also. If at all husband has filed divorce case, then, or girl, if girl also she has filed, then there is section 24 application can also be moved. In domestic violence, section 23 application is always there for interim relief. In 125 CRPC, that is maintenance case, over there also interim relief application can be moved. Interim relief says that we always seek from the court that yes, the case will run for maybe for 2 years or so, but for the time being, during the pendency of the case, I need this interim relief, otherwise I won't be able to run my case. तो वहां हमें बहुत ज्यादा एक मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि हम इंटरिम रिलीफ कोर्ट से, और वो इंटरिम रिलीफ विद इन 3 to 6 months, depending upon definitely the hard work or the intention of both the client and the lawyer. अगर हम बहुत सीरियसली उसको फॉलो अप करते हैं और ऐसे करते हैं और अपनी वो दिखाते हैं, जरूरत भी है कोर्ट को, तो कोर्ट ऑलवेज पासेस एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ अस. तो एक बहुत बड़ी एक राहत है हम सबके लिए और लेडीज के लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट. और अगर वो कार वापस लेने की कोशिश कर रहा है, स्टेटस मेंटेन जो हमने हुआ है उससे हमें डिप्राइव करने की कोशिश कर रहा है, तो देयर इज अ रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट he has to maintain the same status of the wife also. Whatever was there earlier, the same kind of status he has to give. It's not that कि बच्चे पहले IB स्कूल में पढ़ रहे थे या इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे थे और बाद में वो उनको बहुत कहीं ऐसे, ठीक है आप इस स्कूल में डाल दो, आई कांट अफोर्ड, मैं नहीं दे सकता इतना पैसा. तो he has to maintain, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है. That ruling says that he has to maintain the same status whatever was there earlier. So there are so under interim relief itself. Interim relief can be based on that, will be based on those things, those rulings. Yes. So that comes while arguing for the interim relief, we can always quote that. So ye jo preconceived notion hai, because of all those reasons only people are not even approaching to the court. They are not coming, they are not comfortable. So वो पेरेंट्स ने भी वही एक माइंडसेट बना रखा है कि नहीं कि कोर्ट नहीं जाना है, लिटिगेशन में मत जाओ, कोर्ट बहुत ऐसी चीज है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट कोर्ट इज, आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर मोर clean, neat and clean than anything else. You should go and take order of the court, get your that interim relief, and then take care of yourself and kids. That is more that powerful. Court's order are more powerful, definitely, very, very powerful, in fact. But Ritu ji,
डेफिनेटली आपने जो बात बोली, कोर्ट का जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बट Yes. सही मायने में एक सही साथ मिलना में जरूरी है। नॉर्मली जितने हमें सही एडवोकेट्स भी नहीं मिल पाते, उनसे हम अप्रोच नहीं कर पाते। ये आपकी बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ जो जिस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, समटाइम्स दे गिव दैट काइंड ऑफ गाइडेंस ओनली, दे वांट टू, दे विल डेफिनेटली गाइड दैट पर्टिकुलर फील्ड in which they are their forte is there. So लेकिन यही एक, मे बी यही एक बहुत बड़ा रीजन है रीथ फाउंडेशन का कि फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर नथिंग, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग फॉर दीज सेशंस, and we are doing it on a very different scale also. So that is the reason behind it कि at least और कुछ नहीं तो हम गाइडेंस तो उन्हें फ्री में प्रोवाइड करके बता सकते हैं. They will be having those options in their mind कि okay, during the session she told us that in this domestic violence maintenance 498A I have those so many rights as a legally wedded wife. So then if at all she will be approaching to any lawyer, if that lawyer will not mention any of those sections, so then she'll be able to ask that what is the reason I have that right also, मेरे पास वो right भी है, मुझे पता है, but आपने मुझे suggest नहीं किया है, तो she can cross question. और आपकी बात ये सही है, लेकिन हमें हमेशा, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ भी ये होता है कि हम हमेशा सेकंड ओपिनियन एक लेते हैं, तो लॉयर्स के साथ भी लोग नॉर्मली सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लेते ही हैं, एंड देन दे कम बैक एंड देन डिसाइड टू whom they want to go for. So it is just like that only. And सबके अपने अपने एक कंफर्ट जोन्स हैं प्रैक्टिस के, तो देन एज पर दैट दे सजेस्ट एंड दे गाइड देम. कोई इंटेंशनली गलत नहीं सलाह देगा, ये मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है. जी जी बिल्कुल. हाँ, एक बड़ी की बात जो रितु जी ने जरूर बोली कि डिसीजन क्या है वो अल्टीमेटली क्लाइंट का ही शायद रहता है, पर उनको अवेयरनेस पूरी रहना, ये एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने कॉज पिक किया है. उनको अपनी अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरीके से प्रोसीड करना है. Yes. And for our consultation, I myself charge for my consultation charges for 1 hour, for 1.5 hours. They come and I always call them कि okay, you come over, at least know your rights, write down everything that these are the options, and then go home and decide which option you want to go for, or if you don't want to go for anything, it's up to you. Decision will be yours. We are there to support you legally. So that is the motive of Reith Foundation also, to spread awareness, at least to let them know, and that too means on this thing, on this platform, I think it will help the society. जैसे रितु जी आपने थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट के बारे में बताया. जनरली यू नो वी सी अ लॉट ऑफ क्राइम्स इन टर्म्स ऑफ रेप और डोमेस्टिक वायलेंस एंड harassment happening around, you know, both with men and women, not just women in particular. What are the first steps one should keep in mind or one should go for in such a case, and considering that there is a huge social stigma also coming out in such cases? जी एक्चुअली ये तीनों ही चीजें जो आपने टॉपिक उठाए हैं, जैसे कि रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट, ये तीनों ही अपने आप में एक अलग डिफरेंट वो है, इनके लीगल प्रोविजंस सारे डिफरेंट हैं. रेप कम्स अंडर सेक्शन 376, और इसकी कंप्लेंट जैसे ही अगर किसी भी महिला को ये लगता है यहाँ ऐसा कुछ उसके साथ ये अपराध हुआ है, तो she can go to the police station. She just have to move one application complaint against that accused कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और पुलिस स्टेशन में वहां पर उनको accused को अरेस्ट करेंगे. लीगल एड काउंसिल उनके लिए बुलाई ही जाएगी, इट इज मैंडेटरी. लीगल एड काउंसिल का काम ये होता है, जैसे कि हम लोग हैं, या मैं और मेरे जैसे और भी मेरे साथी हैं और लोग जो इस उसमें ड्यूटी पे हैं,
तो उनका हमारा ये है टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द विक्टिम एंड द पुलिस. Sometime it happens the later stage, ये क्या होने लगा था कि या तो विक्टिम मुकर जाते थे कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था, और ये सेंटेंस पता नहीं पुलिस ने ऐसे क्यों लिखा है, और कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी. तो जस्ट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी बिटवीन बोथ ऑफ देम कि देन वी आर कॉल्ड ओवर देयर, वी अटेस्ट दैट स्टेटमेंट, वी टेक द स्टेटमेंट फ्रॉम द विक्टिम and then we attest that statement, and then there is an authenticity behind that, and plus we are there to guide them, to help the victim. Sometimes they are very scared. एक तो उनके साथ ऐसा कुछ अपराध हुआ है और पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस स्टेशन में सारी चीजें नरेट करना, फिर पुलिस के साथ उनके आगे के जो प्रोसीजर होते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये प्रोसीजर मेरे साथ ही हो रहा है कि ये सच में होना है. तो उसमें उसके तहत उनके पास एक मतलब उसके चलते इन्वेस्टिगेशन के चलते उनके दो मेन जो होते हैं वहां पे प्रोसीजर, एक 164 के बयान होते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास उनको लेके जाया जाता है, और वहां पर उनके बयान होते हैं और मेडिकल होता है. ये दो चीजें पहले सबसे पहले होती हैं, फिर उसके बाद देन डेफिनेटली एफआईआर होते ही एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है. सेम इज द केस विद द सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट कम्स अंडर 354, सेक्शन 354. अगर किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, उसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, 354 ए बी सी डी. कोई स्टॉकिंग है, कुछ सोशल मीडिया पे डालना है या छेड़ना है या हाथ लगाना है, बहुत सारे डिफरेंट हैं वो. अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो अंडर सेक्शन 354 अगेन द सेम काइंड ऑफ कंप्लेंट कैन बी फाइल. छेड़छाड़ है, कुछ भी किया है उसने ऐसा, तो वो वहां पर आकर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट देंगी, और सेम प्रोसीजर वहीं लीगल एड काउंसिल को बुलाया जाएगा, 164 के बयान होंगे उनके, और मेडिकल करवाया जाएगा इफ रिक्वायर्ड. मेडिकल तब होगा इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज मेडिकल उस केस में नहीं होगा, बट रेप केसेस में मेडिकल होगा. एंड आपका थर्ड ये पॉइंट था कि डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस को पहले डिटेल में बताने से पहले मैं एक बार फिर से सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताना चाहूंगी कि एक तो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे हमारे साथ किसी एक अननोन इंसान ने, या नोन बट ही इज नॉट, वी आर नॉट वर्किंग एट अ सेम प्लेस, तो वहां हम पुलिस को अप्रोच करते हैं 354 के अंडर. लेकिन अगर हम कहीं पर, इफ आई एम वर्किंग समवेयर इन वन कंपनी और ओवर देयर ओनली, और इन स्कूल और एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर अगर मेरे ही कॉलीग ने मेरे साथ ऐसा कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तो देन इट कम्स अंडर दैट पॉश. पॉश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. तो पॉश एक्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत वास्ट एक एक्ट है, जिसकी एक अपनी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी और सारी चीजें हैं, सेटअप है कि हाउ डज इट वर्क. Then we can discuss it in the next session if at all you will be interested. So we can always discuss that one in detail. और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते हमारे पास बहुत सारे एक लीगली वेडेड वाइफ के पास, और डोमेस्टिक वायलेंस अप्लाइज टू लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो. डोमेस्टिक वायलेंस मैट्रिमोनियल में लीगली वेडेड वाइफ भी डाल सकती हैं, एनी लेडी, और मदर भी डाल सकती हैं. Any lady who is staying in a domestic relationship with that person, particular person, she comes under this, and she can always file that domestic violence. Mother can also file, sister-in-law can also file, wife can also file against husband, or live-in relationship if at all you are staying in, then also you fall under that category. लिव इन रिलेशनशिप में जैसे कि आजकल बिकॉज बहुत ज्यादा ये हमारे उसमें भी आता है, वी कम अक्रॉस विद सच केसेस, बट लिव इन के अंदर एक कोर्ट ने एक डेफिनेशन है वहां पर, मींस एग्जैक्टली इट्स नॉट अ डेफिनेशन बट देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप की बहुत सारी एक उन्होंने व्याख्या की हुई है, उनको उसको डिटेल में बताया हुआ है कि कहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक महीना रहकर you will fall under this domestic violence this act. तो लिव इन में अगर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, आप एक दूसरे का खर्चा उठा रहे हैं, आप मेड्स का खर्चा उठा रहे हैं, आप रेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, आप ग्रोसरी एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल बर्डन
are shared with each other, then you fall under that category. And legally wedded wife, definitely, mother, definitely, they fall under this category, and they can always approach to the court under this Domestic Violence Act. अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चलते हमारे पास सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक बहुत सारे राइट्स हैं। सेक्शन 17 हमें एक ये राइट दिलाता है कि हम अगर मैट्रिमोनियल घर में रह रहे हैं और किसी वजह से झगड़ा हो गया है और लड़ाई है और हमें कहा जा रहा है कि आप ये घर छोड़ दो, जबरदस्ती हमारे साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, कई बार वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर देते हैं घर से निकालने के लिए। बहुत सारी हैं गर्ल्स जो बहुत सारी तरह से अपनी बैटल वो कर रही हैं, फेस कर रही हैं। कई बार मदर्स हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, और वहां पे वो अपने ही बेटे और बहू से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आए दिन उनकी लड़ाई, ड्रिंक करके उसका आना, उसका वाइफ से मार पिटाई करना, वाइफ का इन लॉज को गालियां देना, और बहुत सारा ऐसी चीजें हैं। तो वहां पर मदर कैन ऑलवेज फाइल दैट डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट हर सन एंड डॉटर इन लॉ टू, राइट। सो वहां पर ये वाला राइट प्रोवाइड किया जा सकता है दैट आई वांट, ये सेक्शन 17 जो था जिसकी मैं बात कर रही थी, वो है कि हम स्टे ले सकते हैं अपने शेयर हाउस होल्ड में एज अ वाइफ, एज अ मदर। एंड सेक्शन 18 उसका कहता है कि हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मदर अगर फेस कर रही हैं, वाइफ अगर फेस कर रही है। इफ आई एम बीइंग अ वाइफ, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल एज अ टीचर सपोजिंगली, और मेरा हस्बैंड हर रोज दोपहर को वहां पर आकर हंगामा करना शुरू कर देता है, या मेरी कंपनी में आ जाता है। ऐसा होता है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आती हैं, कहती मैम, एक अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी एंड देन शी सेड कि मैम वो आकर मेरी कंपनी में नीचे आकर मुझे बोलता, तू पहले अब नीचे आ, मुझे नहीं पता, मिलने आ भी। तो शी सेड ये क्या तरीका है, मैं मीटिंग में हूँ, आई कांट कम डाउन राइट नाउ। कहता आई नो यू आर नॉट इन द ऑफिस, यू आर लाइंग, यू आर नॉट इन द मीटिंग। So she had to come down just to prove her this thing that yes, I'm in the office only. So in that ways वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे ही हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ और भी केसेस थे, उसमें एक गर्ल थी, अर्लियर शी सेड, उसको लगा कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मैम, इट्स ओके, ही इज अ हस्बैंड, ही इज अ फादर, 2 बच्चे हैं मेरे, मिलने आ जाता है तो कोई बात नहीं, मैंने, उसने हरकतें की हैं, मारा है मुझे, बदतमीजी की है, तो मैंने फाइल कर दी है, बट अब वो कभी कभी घर आता है बच्चों को मिलने, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन। आई आस्क्ड हर कि इफ यू वांट, मैं फर्स्ट स्टेट पे ही प्रोटेक्शन का बोल देती हूँ। तो शी सेड नहीं मैम मुझे नहीं चाहिए। बट आफ्टर फ्यू डेज शी कॉल्ड मी, शी सेड मैम ये तो आए दिन यहीं बैठा रहता है और लोगों को ला ला के मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं केस वापस लूं, और बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है जो मेरी, अब मैं और ज्यादा हरास हो रही हूँ बहुत ज्यादा मेंटली। तो देन इमीडिएटली वी हैड आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर हर, and court had given her, court has in their order, they have passed an order that the respondent, that means her husband, is restrained to enter in the house. So she was so happy with that. So there are so many different legal provisions, जैसे section 17 का मैंने बताया, share household पे हम stay ले सकते हैं कि हमें कोई निकाल नहीं सकता। Section 18 says protection at social media, protection not to contact me, not to enter in my office, not to have any kind of contact with my relatives, nothing. And नहीं तो सोशल मीडिया पे कई बार लोग दे स्टार्ट राइटिंग समथिंग अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज वो एक रिवेंज मोड में चले जाते हैं। एंड देन सेक्शन 19 सेज राइट टू रेजिडेंस। राइट टू रेजिडेंस, अगर कोई लड़की ऐसी है जिसके पास कोई घर ही नहीं है रहने के लिए, वो कहाँ रहेगी, वो कहाँ जाएगी, तो वो क्लेम कर सकती है रेंट अपना, मदर क्लेम कर सकती है रेंट अपना। अगर बच्चों ने निकाल दिया है मदर को कहीं पर, और मदर को एक घर में छोड़ दिया रहने के लिए, सपोज अगर उसको बोल दिए ठीक है आप मम्मी आप वहां पे रह लो, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वी विल कीप गिविंग योर रेंट, और रेंट वो 2 महीने बाद बंद कर देते हैं, देन शी कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट, शी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट, आई डोंट हैव माय अर्निंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम डिपेंडेंट अपॉन माय चिल्ड्रन, तो मैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आई कैन ऑलवेज क्लेम द
रेंट। तो हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वाइफ की ही बात कर रहे हैं, एनी लेडी हु इज स्टेड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सो शी कैन ऑलवेज क्लेम दैट। मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं वो 125 के अंदर। एंड प्रोटेक्शन के बाद मॉनिटरी राइट टू रेजिडेंस सेक्शन 19 में मैंने आपको बताया, एंड सेक्शन 20 सेज अबाउट द मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ ले सकते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्सपेंस एंड अर्निंग एंड लाइबिलिटीज। तो कोर्ट जो है वो हमारी इनकम एंड एसेट एफिडेविट दोनों पार्टीज का मंगवाती है, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, एंड then they go through everything, each and everything, and depending upon the earning and liabilities, then they pass an order for the interim relief, for maintenance, for monetary relief. And section 21 of domestic violence touches about custody of child. Till 5 years, it remains with the mother, mandatory. If at all, until and unless there is very serious reason behind it, that if she is into, if the father is able to prove that she is into drugs, or she's not capable enough to take care of the child, only then the father will be able to take the custody before 5 years. Otherwise 5 years के बाद वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में भी मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी सेक्शन 21 में भी मूव कर सकते हैं फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. And section 22 talks about compensation. Compensation अगर कोई डैमेज हुआ है, मेंटल, मेडिकल, कुछ ऐसा है. And 23 talks about that interim relief, जो मैंने अभी आपको पहले भी क्लियरली वो किया था मेंशन. तो ये सारी चीजें जो अभी आपने तीनों बोली, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस, ये तीनों अपने आप में बहुत वास्ट और डिफरेंट टॉपिक्स हैं. सो उन दोनों के लिए हम पुलिस स्टेशन पे पहले अप्रोच करते हैं, एंड देन एट द लेटर स्टेज इट कम्स टू द कोर्ट. बट डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो कोर्ट से ही स्टार्ट होता है. दैट्स इट. As a common person, I am able to see कि जिस तरीके से जितने अलग टाइप के क्राइम्स हैं और जिस लेवल के क्राइम्स है, उसी उन हिसाब से there are provisions in the law Yes. to make the victim feel safe, protected, और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की, बी इट मॉनेटरी, बी इट मेंटली, बी इट रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर फ्रॉम समबडी, उस तरीके के प्रोविजंस हमारे लॉ में एग्जिस्ट करते हैं. दे आर वेरी इजीली, आई थिंक, अप्रोचेबल एंड डूएबल. Yes, very true. It is there, and बस यही है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है. So that's what we are doing right now also, and I keep conducting these kind of sessions, seminars, workshop, and POSH के I'm in panel with few MNCs for POSH too. Today also I have one session on POSH. So we keep spreading this awareness that you have those legal provision, but it's just that you need to know and then use it if required. From one of your events, I can recall, एक incident की, मैम मैं परेशान तो हूँ, but I don't want to divorce the person. I think there is a provision for that as well, wherein you want some intervention, एक arbitration आपको चाहिए, but you don't want to right away proceed for divorce. You want to see if it can work out. See, domestic, yes, legal provisions है, यही मैंने आपको बताया. जैसे हम मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस का कर सकते हैं. till the time you want to get that person restrained from your life, you can do that too. If you just want that he can stay in the same house, then you can always tell the court in that domestic violence only, under section 18, that he can stay, but there is no communication, no physical abuse, nothing. And if at all she doesn't want to go for divorce directly, or if because gents, they have only 2-3 rights, that is divorce and restitution of conjugal rights. तो अगर उन्होंने डिवोर्स डाल दिया है and she doesn't want to give divorce, तो she can always fight the case, contested divorce बन जाएगा वो. और वहां पर वो मीडिएशन सेंटर्स होते हैं,
हमारे DLSA डिपार्टमेंट की तरफ से ही वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिएटर्स होते हैं जो कि ट्रेंड मीडिएटर्स हैं कोर्ट में, और वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। वो बहुत प्रॉज एंड कॉन्स बता देते हैं, दोनों पार्टीज को देखकर ये बता देते हैं कि ये रहने वाला है, ये नहीं रहने वाली है, या कुछ भी जो भी उनको सिचुएशन समझ में आती है। इट्स नॉट दैट कि वो आपको कोई सी चीज के लिए फोर्स करेंगे, दे विल ऑलवेज गाइड यू। मीडिएटर्स बैठते हैं और बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड मीडिएटर्स हैं वो सारे, और वो आपके लॉ के आपके सारे प्रोविजंस भी आपको बताएंगे, वो आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे। देन डिपेंडिंग अपॉन दैट देन वन कैन टेक देयर डिसीजन उनका अपना होता है पार्टीज का, क्या डिसीजन उनको लेना है। देन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मीडिएशन फेल हुआ है कि मीडिएशन सक्सेसफुल हुआ है, एंड देन दैट रिपोर्ट गोज टू डिवोर्स। किसी भी केस के स्टेज पे डिवोर्स, डीवी, मेंटेनेंस, मैट्रिमोनियल के किसी भी केस की स्टेज पर हम उसको मीडिएशन में ट्रांसफर करवा सकते हैं एट एनी स्टेज। We can also say that, and court can also themselves they can take the decision कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि there is a scope, between the these parties that there can be a settlement can be this side or that side, whatever. So I would like to refer this case to the mediation center. अभी हमारा recently एक domestic violence का case mediation में refer हुआ है, though we were not interested. I told the court that Your Honor, we are not interested at this stage, but still they took the call that no, the another party is actually interested, so let's see if at all there is any scope, so we can always go for it. So at any stage we can go for this mediation centers, and something happens so that can be taken care of. एक सवाल और है मेरे मन में, जैसे ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस आजकल साइबर क्राइम्स एक तरीके से जिनको बोल सकते हैं, वो these are becoming very prevalent and the target are usually very young girls and boys. और छोटे होते हैं तो शायद इतनी समझ भी नहीं होती कि पेरेंट्स को बताएं, किसको अप्रोच करें, और कहीं फंस जाते हैं and they don't know their way out. Yes, you are right. ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स दोनों के क्या एक्शंस हैं? Yes. See, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पर उनसे कई बारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो स्टेज ऐसी है या वो सामने वाला इंसान ऐसा है या कुछ है, तो ऐसे ही साइबर क्राइम के केसेस आते हैं। बट यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, और कुछ पेरेंट्स देते भी हैं। पेरेंट्स आते हैं, पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेन दे सकते हैं। सारा डेटा उनको दे विल हैव टू प्रोवाइड, जितनी चैट हुई है वो दे नीड टू प्रोवाइड, and police will definitely be asking for that device, that mobile or that laptop, from wherever you've been doing those chatting or something like that, if at all. So they can always approach to the police regarding the same, and police they definitely they take a very quick action, and it comes under that IT Act. IT Act के अंडर आता है ये सारा, और IT Act के अंडर ही आपकी FIR रजिस्टर होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, अगर और भी सेक्शन उसमें इंक्लूड होते हैं तो वो भी होंगे उसमें। थ्रेटनिंग के हैं तो 506 भी लगेगा, और भी चीजें हैं तो वो भी लगेंगी, और ये उसी वक्त पुलिस अपना एक्शन लेना शुरू कर देती है। आप नंबर प्रोवाइड करोगे, आप सारी चैट डिटेल प्रोवाइड करोगे, तो दे क्विकली दे टेक एन एक्शन, they will find out the location of that person and they will arrest that person. But it's we have to actually raise our voice, we need to, and parents have to support, means they need to. और बच्चों को भी मेरी यही हमेशा सुजेशन होगा कि जो यंगस्टर्स हैं, इफ एट ऑल इट हैपेंस, इट्स ओके। बहुत सारी हमसे गलतियां होती हैं लाइफ में, बट गलतियों का मतलब ये नहीं कि हम इसको कुछ छुपा लें, बताएं नहीं। तो वी नीड टू, बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग इट विद यू राइट नाउ, उसका अगला टारगेट पता नहीं कौन है, फिर उसके बाद उसका अगला टारगेट कौन होगा। तो इसलिए वी नीड टू रेज रेज आवर वॉइस एंड स्टॉप दैट थिंग, सो दैट आगे किसी की हम जान बचा लें, कि किसी के साथ गलत ना हो। इन केसेस में एक काफी बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का भी
कहता है that there should be no harm to the dignity of the child because of the mental trauma that it could cause to the child. तो उसमें पुलिस के द्वारा और लॉ के द्वारा क्या प्रोविजंस हैं तो कि बच्चा एक मेंटली थोड़ा प्रोटेक्टेड और सेफ स्टेट में अपने आप को यस अगर आप सिर्फ अगर बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि दोज हु आर नॉट मेजर दोज हु आर माइनर तो दोज माइनर चिल्ड्रन दे कम अंडर दिस पॉक्सो एक्ट पॉक्सो इज prevention of child from sexual offense and POCSO is a very strong act. POCSO जो है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है और इसके चलते साइकोलॉजिस्ट हैं और पुलिस बहुत ज्यादा ये ख्याल रखती है कि बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो अगर वो यूनिफॉर्म से उनको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो दे गो इन कैजुअल दे टेक द स्टेटमेंट इन देयर कैजुअल क्लोथ्स ओनली और उनके अगर पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स से ही कंप्लेंट वो करवाते हैं बच्चे की स्टेटमेंट ली जरूर जाती है हम लीगल एड काउंसिल को भी बुलाया जाता है पॉक्सो में तो हम भी बच्चे से स्टेटमेंट लेते हैं साइन करते हैं एंड जितना हम कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं उतना फील करवाते हैं और अगर हमें ऐसे लगता है कि ये इंटरनली ही कोई ऐसा इंसान है जो घर जाकर भी उस बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर रही है जैसे कि 2 बच्चियां थी उनको एक एनजीओ ने रेस्क्यू किया था wherein they were sexually harassed by their own family members तो वहां पर उनके लिए एक सेफ्टी का एक क्वेश्चन आ गया था तो ये था कि अब उन्हें घर भेजना सेफ नहीं है बिकॉज देयर ओन मदर बोथ द गर्ल्स एक्चुअली क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द डिस्कशन गुड और बैड टच की बात हो रही थी एंड देन दे डिस्क्लोज्ड टू देयर टीचर्स उन्होंने बताया तो वो टीचर ने एनजीओ के जो टीचर थे उन्होंने एकदम एक्शन लिया थोड़ा प्रोएक्टिव हुए उन्होंने उनको रेस्क्यू किया बच्चियों को रेस्क्यू करके उनको लेकर आए तो वो जो मदर्स थी they came to the police station and they started forcing कि नहीं ये तो हमारी बच्चियों को भड़का कर ये जानबूझकर गलत उनसे वो करवाया जा रहा है ये है वो है तो वो उनको उस दिन भेजना वहां बिल्कुल सेफ नहीं था तो वहां पे चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं हमारे यहाँ सीसी सेंटर्स भी होते हैं तो वो सेंटर्स में फिर पुलिस वहां पर बच्चों को छोड़कर आती है और गुड़गांव में भी है सब जगह है और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है उन्हें बहुत अच्छे से वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिसके चलते इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाता है एंड इफ एट ऑल पेरेंट्स आर सपोर्टिंग तब तो हमें उन्हें वहां भेजने की जरूरत ही नहीं है देन पेरेंट्स कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ द चाइल्ड these are I think क्राइम तो जो है वो एक तरफ है पर दीज आर द सॉफ्टर एस्पेक्ट्स जिनके बारे में भी लॉ में बहुत प्रोविजंस हैं हर चीज का आई थिंक बहुत अच्छे ऑल राउंडेड पर्सपेक्टिव में ध्यान रखा जा रहा है when it even comes to the younger mind. Yes, true. बहुत सारे सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के जैसे एक और सेंटर है जैसे वन स्टॉप सेंटर है वन स्टॉप सेंटर में के बारे में बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है हमारे गुड़गांव का वन स्टॉप सेंटर इतना अच्छा सेंटर है वहां पर अगर कोई वुमेन विक्टिम कोई भी किसी भी तरीके का अगर केस कोई 376 का सेक्सुअल हरासमेंट का कोई पॉक्सो का कुछ ऐसा लगता है तो वहां पर फ्री मेडिकल हेल्प फ्री लीगल हेल्प फ्री शेल्टर फॉर 2 days नॉट मोर देन दैट मे बी अगर स्ट्रेच करना है अगर 3-4 दिन के क्योंकि कई बार वो लड़कियां ऐसी हालत में भी आती हैं कि खून है यहाँ पर ये वो तो हम उनको एकदम से घर नहीं भेज सकते हैं पहले उनको मेडिकल असिस्टेंस वो देते हैं उनकी वो मदद करते हैं फिर उसके बाद उन्हें वहां पर लीगल एड को बुलाकर उन्हें वो गाइडेंस दिलाई जाती है फिर उन्हें शेल्टर दिया जाता है 2 दिन का कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लो एंड देन टेक अ कॉल कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बट वही है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में हैं तो हम सोचते हैं चलो मम्मी ने बोला जो मम्मी ने कह दिया हम वो कर लेते हैं मम्मी ने भी तो सहा था ऐसा भी बहुत है हमारी सोसाइटी बिकॉज ऐसी है अभी हमने रिसेंटली केस डाला है तो दैट गर्ल इज बीइंग फोर्स्ड बाय हर पेरेंट्स हर मदर हर सिस्टर
उसकी सिस्टर फोन कर करके उन्हें ये बोल रही है कि मैंने भी तो सहा है, मम्मी भी तो सहती थी, तू सह लेगी तो क्या हो गया। तो मतलब ये माइंडसेट भी कैरी कर रही है, ये स्टीरियोटाइप ये चल रहा है पीछे से बहुत। और मुझे नहीं लगता, लेकिन बट शी इज बीइंग स्ट्रांग, तो आई एम हैप्पी एट लीस्ट दैट ऑल अलोन शी इज टेकिंग दिस स्टेप, शी इज सेइंग नहीं, दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक अप ऑन। तो वी हैव टू जस्ट रेज द वॉइस एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, तो विजन सारे हैं, अपनी राइट पता होना, लेकिन Yes. अल्टीमेटली उसके खिलाफ आवाज उठाना और अपने आवाज। लिए आई थिंक एक स्टैंड लेना पहला स्टेप। ये हमारी ड्यूटी है, कोई हमें आएगा जी। नहीं वो करवाने के लिए, ये हमारी अपनी पर्सनल ड्यूटी है कि अपने लिए आवाज उठाना। आगे आने वाले सेशंस में थोड़ा हम डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट और पॉक्सो के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जरूर। पर आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें हमें पता लगी, एंड आई एम श्योर आज जो भी ये एपिसोड देखेंगे उन्हें भी बहुत चीजें पता लगी होंगी। दे वुड विश टू कनेक्ट विद यू। और हम वेलकम करते हैं अपनी ऑडियंस में से कोई भी जो एडवोकेट रितु कपूर जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट देयर राइट और फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, एनीबडी, दे आर वेलकम। थैंक यू रितु जी। आज का एपिसोड बहुत ही एक एनलाइटनिंग रहा। मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है जब हमारे अपने हमें परेशान करते हैं। जिंदगी में हर्डल्स तो बहुत हैं, लेकिन जब अपने ही हमारा साथ नहीं निभाते, लेकिन एक तो साथ नहीं निभा रहे, ऊपर से वो प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो मेंटली हैरेसमेंट की बात की आपने, वायलेंस की बात की, तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन सही गाइडेंस देना, एक ऐसे मौके पर एक सही साथ मिलना और एक सही गाइडेंस देना जिंदगी को आसान कर देता है। वो काम आप बहुत अच्छे से कर रही हैं और हमें खुशी है कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं। और हमारी तरफ से, पूरे एफआईआई की तरफ से, आप अब एफआईआई के साथ भी जुड़ी हैं, तो एफआईआई को कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट चाहिए या कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट कर सकती है, यहाँ आपकी गाइडेंस हमें चाहिए होगी और हम आपके साथ हैं। और इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम यही इजाजत चाहूंगा आज की इस एपिसोड को खत्म करने की। बाकी हम जुड़े रहेंगे और मैं अपने ऑडियंस से भी कहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, जो इस एपिसोड को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आगे वो क्या क्या चीजों पर बात करना चाहते हैं, उनके अगर कोई क्वेरीज हैं वो मेंशन करें, रितु जी उनका आंसर देंगी। हम रितु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अगले 2-3 और एपिसोड इनके साथ बनाएं। इसी के साथ ही हम आज इजाजत देते हैं। नमस्कार। जरूर, मैं भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी द्रव्या जी और संजीव जी का एंड एफआईआई की फुल टीम का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और एफआईआई के साथ मैं बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं जुड़ी हुई हूँ उसके साथ, और जहां जहां मेरी मदद की जरूरत होगी आई एम ऑलवेज देयर। एंड इसी के चलते थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी and looking forward for the next session. I'm always there to spread this awareness. Thank you, Ritu ji. See you very soon. Thank you. Okay, namaskar. Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channel. See you next week.